विभाग कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दक्षिण पश्चिम मानसून का पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी करेगा। विभाग मानसून से पहले 2 बार अपने अनुमान जारी करता है। पहले अनुमान से एक तस्वीर साफ हो जाती है कि उस साल मानसून की देश में चाल क्या रहेगी, वहीं दूसरे अनुमान से मानसून को लेकर तस्वीर और ज्यादा साफ होती है। पिछले 2 बार से भारत में सामान्य मानसून दर्ज किया गया है, जो कि IMD के अनुमानों के मुताबिक था, और इसी वजह से मौसम विभाग के शुक्रवार को जारी होने वाले यानी कि आज जारी होने वाले मानसून के अनुमानों पर कृषि और इंडस्ट्री से लेकर सरकार की भी नजर रहेगी, क्योंकि पिछली बार कोरोना कहर के बीच बेहतर मानसून की मदद से कृषि सेक्टर ही ऐसा सेक्टर था जिसमें ग्रोथ दर्ज की गई थी। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ हैं रुकमा। A very good morning to you, Jaya, and to all our viewers as well. As Jaya just mentioned, the IMD will, in a short while from now, issue its operational forecast for the monsoon season, June to September, rainfall for the country. And well, we'll be discussing all the implications of whatever announcements are made. There are 2 such forecasts that are made, and we'll also be taking a look as and how we can at how it actually affects the situation on the ground and how effective these forecasts have been. Joining us now is our correspondent Tapas Bhattacharya. Tapas, a lot of expectations this time around from the IMD's forecast, which is to be announced in a short while from now. Last year, they met with an 80%, over 80% success as far as rainfall forecasts, as well as, you know, forecasts of the various cyclones that took place, natural disasters that took place were concerned. Well, this year it is expected that, I mean, as of now, what we can tell you as per the sources is that it is expected to be a normal rainfall. And in fact, in 2019 and 2020, both the years saw, this, normal rainfall. In fact, this is the 3rd time, in fact, when we talk about 19 and 20, and keeping in mind that this is the 3rd time in the 100-year history that, twice in a row that normal rainfall happened, and it is expected that thing is going to continue even in the 2021 prediction. It is in a very short while from now. IMD will be providing its weather forecast for the southwest monsoon, and it is expected that this year also it is going to be in the range of the long period weather forecasting that they spoke about. The forecast, the long range forecast, it is expected to be in the region of almost 100 to 105 LPA. So that means that this year also one would get a very good rainfall. And what does that mean? The southwest monsoons, normal southwest monsoon means that one would have a abundance of agriculture output, and that will help in the long run in the economy. Remember, during the COVID crisis, the one thing that actually saved the economy was agrarian sector, and it is expected that even this year also the agrarian sector is going to prove to be an absolute critical role in India's economy. Rukma. Right. A critical role as far as India's economy is concerned when we talk about the impact on agriculture. We do know that for years, for centuries, the farmers have depended, we being basically agrarian economy, farmers have depended on the weather forecast, on the weatherman for managing their crops for their livelihood. Yes, and that's where the IMD's role becomes even more important, because a proper right prediction of the forecast of the rainfall activity, the southwest rainfall activity. Remember, southwest monsoon plays a very critical role in the country and its agrarian economy. Even now, most of more than 50 to 60% of India's agrarian economy is based out of southwest monsoon's role, and that's one of the reason why. तो बिल्कुल भारतीय मौसम विभाग की तरफ से इस साल के मानसून के मौसम के लिए पूर्वानुमान जानकारी इस वक्त जारी की जा रही है। सीधे चलते हैं, सीधा प्रसारण देखते हैं। तो बिल्कुल भारतीय मौसम विभाग का पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी होने जा रहा है, और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इस देश का मौसम रहने वाला है। विभिन्न क्षेत्रों पर इसका खासा असर हम देखते हैं। तो सीधे चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। which was developed indigenously
And we have been using this statistical model since 2007. And recently in 2017, we introduced a monsoon mission climate forecasting system model. It's a dynamical model it's a coupled climate model developed under the monsoon mission to generate dynamical model seasonal forecast also. So we have two systems, and we have been using these two systems for last few years. And this year we are introducing a new forecasting strategy, which first I will brief you. And as you know that there have been a lot of demands from different users, especially from government authorities, for forecast of spatial distribution of seasonal rainfall along with the regionally average rainfall forecast for better regional level planning of activities. As of now, we have been giving a forecast for all India as well as for homogeneous regions. So, but there is a demand for spatial distribution. So we thought we will come up with a new modeling strategy for giving a spatial distribution. This is the first time we are announcing a spatial distribution of monsoon rainfall. For that, we have developed a modeling framework called multi-model ensemble. It's a dynamical framework, and this forecasting system is based on a few coupled global climate models, in addition to our MMCFS model, which we have been using it since 2017. This multi-model ensemble, the multi-model ensemble is a universally accepted technique used to improve skill of forecast and reduce forecast errors when compared to a single model based approach. This is nothing new. It has been, the whole world community of climate prediction centers have been using this MME technique for improving their forecast. And even in IMD, our statistical forecasting system is basically a MME system. And when IMD issues forecast for SESCOF, for example, every April, that they also use a MME system. So first time for monsoon seasonal forecast, we have introduced the multi-model ensemble system. The performance of improvements are basically attributed to the collective information of all models used in this MME forecasting system. So what I mean is that instead of using only MMCFS model, dynamical model for seasonal forecast, we are using now a few models and in a multi-model ensemble framework. I will show the next slide. I will show the diagram how it is prepared. We use the March initial conditions and few models are selected, and output the results from these models are used to develop the multi-model ensemble model. And for training this multi-model ensemble model, we have used a very robust statistical algorithm. Simple way, we can simply take arithmetic average of all this model output and use for forecast. Instead of that, we use a robust statistical algorithm to train this multi-model ensemble system. And we have used the data from 82 onwards for training this model. And then this model, multi-model ensemble, can be used for calculating probabilistic forecast, a spatial distribution of probabilistic forecast, which I will show you at the end of my presentation. Then also monthly forecast, as I told at the beginning that we have been issuing monthly forecast for July and August separately using our statistical models. So this year onwards, we will be issuing monthly forecast every month using an indigenously developed MME model framework for preparing monthly forecast instead of statistical model. So monthly forecast will be prepared during the last week of the previous month and updated every month. So for example, June forecast we will issue at the end of May, and July forecast we will issue at the end of June, and August forecast we will issue at the end of July, and so on. So every month we will update for the next month forecast, 30 days of 31 days of average monthly forecast for all India and also a kind of spatial distribution. And this has been a new idea, a new strategy for monsoon forecast. It's called forecast for monsoon core zone. The left hand side, which is shown in green color, is monsoon core zone, which we normally use it for understanding the active and break cycle. IMD has been using this active monsoon core region rainfall, daily rainfall, for understanding how the active break cycle works in a particular year. And
many research papers have been written on this monsoon core region. And if you really see the monsoon variability of all India rainfall and monsoon variability of monsoon core region, both are highly correlated. About 85 to 88% of all India rainfall variability is contributed by the rainfall variability of monsoon core zone. So the most of all India rainfall variability lies within this core zone. And coincidentally, this rainfall zone very much resembles the rain-fed region of agriculture, which is shown in the right-hand side. You can see that blue, this is our district map, and blue colors depict where the irrigation-based agriculture is there, whereas red and most of this red colors depicts where agriculture is based on rainfall, monsoon rainfall. So it resembles each other. So what we have decided is, in addition to all India rainfall, we will issue a separate forecast for monsoon core region. It's called monsoon core zone, but that we will be issuing in the second stage forecast in May. Next one. So now I will come to these are the three important modification or important improvements which we are bringing this year onwards. Next one. Yeah, so this is the new strategy for long range forecast. First April now we will be issuing all India rainfall forecast for and also a spatial pattern of probability forecast for the seasonal rainfall over the country based on statistical as well as MME model. And in the second stage forecast for month of May, we will update the forecast, April forecast, and come out with also a spatial pattern of probabilistic forecast again. And then separately we will issue a forecast for homogeneous regions forecast, seasonal rainfall as well as the monsoon convergence zone, monsoon core zone. The monthly forecast is again we will be issuing it every month, from May onwards, May for June and June for July accordingly. And that will be a kind of a probabilistic forecast for monthly rainfall. In addition to that, 15th of May we will come out with a forecast for monsoon onset. And so I will come to the 2021 monsoon forecast. And first I will discuss about the physical mechanisms of monsoon variability. As all of us know that monsoon variability is influenced mostly by ENSO, El Nino Southern Oscillation. In addition to that, forcings from Indian Ocean, Atlantic Ocean and Eurasia, etc. also have a great influence. But ENSO is the primary forcing for monsoon variability. So we have been monitoring both ENSO as well as Indian Ocean anomalies for many months. And this year, you remember that last year we had a La Nina. 2020 was a La Nina year. And even now the temperature over 3.4 is the central equatorial region is minus 0.5, very close to the threshold of La Nina. But the forecast very clearly show that this is the latest ENSO forecast, very clearly show La Nina is now favored only up to May. Afterwards, we will have a transition to ENSO neutral in April, June 2021 and continuing through the fall of 2021. There is very less chance of El Nino development during the monsoon season. So most of the models are very clearly such that the La Nina conditions will now convert into ENSO neutral conditions, and El Nino development chance is very less. And this, as of Indian Ocean dipole is concerned, these models are clearly showing a small kind of a probability for a negative IOD of minus 0.5. The anomalies are not very high, it's only minus 0.5 or so. And if you really take the because I told La Nina year, last year was a La Nina, so this year if it is a La Nina plus 1, then we have about 14 cases from 1951 onwards if you take the data. And there are 14 La Nina plus 1 years, so 2021 is a La Nina plus 1 year. And out of that, only 3 years monsoon rainfall was deficient. And out of 3 years, 2 were El Nino years. For example, 65 and 72 are El Nino years. So this year we are not expecting that this will turn out to be a El Nino year. So, and otherwise, if you don't consider these 3 years, otherwise the monsoon rainfall is expected to be in normal category.
So this is the forecast. Forecast for monsoon rainfall. We are expecting rainfall over the country as a whole is likely to be normal. And quantitatively, the monsoon forecast is likely to be 98% of the long period average with a modular of plus or minus 5%. And long period average is nothing but it's of 88 centimeter. Neutral ENSO conditions are prevailing over the Pacific Ocean, and neutral Indian Ocean dipole conditions are also prevailing over the Indian Ocean. And if we really calculate the probability for the different categories, and what we get is we get about 40% of probability, highest probability for normal rainfall. The normal rainfall is defined as 96 to 104%. Highest probability is for 40% for normal category. So this year we are expecting a normal monsoon with 98% of the long period average with a modular of 5%. This is a really good news for the country. So last 2 years we had experienced very above normal monsoon rainfall, and so this year we are expecting a normal monsoon. This will really help India to have a good agriculture crop output. And this is the spatial distribution which we would like to share with you. So this is calculated as per our MME model, and the forecast very clearly suggests this is a spatial distribution. And blue color indicates above normal rainfall. The red color, yellow or red color shows the below normal rainfall. Green color shows the normal rainfall. So what the picture shows is actually the maximum probability at a given point. Which category has the highest probability? Wherever blue is shown, there we have maximum probability for above normal. Where green is shown, where the maximum probability is shown as for for normal rainfall. And for the below normal rainfall, all yellow and red color shows where the maximum probability is for. So except for eastern and northeastern parts, like for some parts of Orissa, Jharkhand, some parts of Bihar, and Assam, Meghalaya, etc. The remaining parts we are expecting either normal or above normal rainfall. And if we take it on all India average, it comes to around 98%. So this is the long range forecast, and in the May forecast, the second stage forecast, we will come out with the April update forecast for all India using statistical as well as dynamical MME model, and we also will come out a probabilistic forecast for homogeneous regions using dynamical MME, and also seasonal forecast for monsoon core region, basically rain-fed agricultural region. And also we will come out with a monthly forecast for June for all India as well as monsoon core. So with this I will stop here. Thank you very much for listening to us. So we have a good news to share that India will have a normal monsoon this year, and quantitatively the rainfall will be around 98% of long period average, and we will update this forecast by end of the next month. So next month we will have better information, more information, especially on La Nina conditions and also IOD conditions, and our confidence will be much better in the next monsoon forecast will be issued in month of May. So I will now request Director General of IMD, Dr. Mohapatra, to share with you the details of long range forecast in Hindi. So I request Dr. Mohapatra. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्वागत है। जैसे माननीय सचिव महोदय ने बताए हैं, इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी हुए हैं, इससे ये पता चलता है कि ऑल इंडिया मानसून रेनफॉल 2021 स्वाभाविक रहेगा। ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक सुखद समाचार है। जो हमारा पूर्वानुमान है, इसका जो सारांश है, इसको मैं हिंदी में आपको अभी दोबारा बताना चाहूंगा। समूचे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के ऋतुनिष्ठ यानी जून से सितंबर तक होने वाले वर्षा सामान्य रहने का संभावना है। सामान्य का मतलब होता है कि जो हमारा दीर्घावधि वर्षा होता है
जून से सितंबर के बीच उनकी 96 से 104% तक बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। मात्रात्मक रूप से देखें तो मॉडल की त्रुटि जो प्लस माइनस 5% है, इसके साथ मानसून के ऋतुनिष्ठ जून से सितंबर वर्षा दीर्घावधि औसत के 98% रहने का संभावना है। 1961 से 2010 तक की अवधि के लिए समूचे भारत में ऋतु की वर्षा का दीर्घावधि औसत 88 सेंटीमीटर है। यानी 2021 साउथ ईस्ट मानसून सीजन की टाइम 88 सेंटीमीटर की 98% प्लस माइनस 5% बारिश होने का संभावना है। जैसे सचिव महोदय ने आपको बोल रहे थे कि ये मानसून ज्यादा तक जो लार्ज स्केल प्रोसेसेस होते हैं इसमें प्रभावित होते हैं, और सबसे बड़ा लार्ज स्केल प्रोसेस जो मानसून प्रभावित करता है वो है एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, जिसको हम ब्रीफली बोलते हैं एनसो। और अभी का स्थिति ऐसा है कि प्रशांत महासागर में तटस्थ एनसो स्थितियां प्रचलित है और हिंद महासागर में तटस्थ इंडियन ओशन डाइपोल स्थितियां भी प्रचलित है। आपको मैं ये बोल के रखूं, जैसे प्रशांत महासागर में वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में सी सरफेस ज्यादा गर्मी रहता है और ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक में ठंड रहता है। और वेस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक जब ज्यादा गर्म हो जाता है इसको हम लानिना कंडीशन बोलते हैं, और जब ईस्ट इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में सी सरफेस ज्यादा गर्म हो जाता है इसको एल नीनो बोला जाता है। और इस साल जो स्थिति है ये न्यूट्रल कंडीशन है, यानी तटस्थ एनसो कंडीशन अभी जारी है। एनसो कंडीशन जैसे इंडियन ओशन डाइपोल भी भारत का जो मानसून है इसको प्रभावित करता है। इंडोनेशिया के पास जो सोमालिया के पास जो वेस्ट इंडियन ओशन है वो वार्म होता है, और इंडोनेशिया के पास जो ईस्ट इंडियन ओशन है वो कूल होता है, तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। और इंडोनेशिया के पास ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन जब गर्म होता है सी सरफेस वाटर, और सोमालिया के पास जो वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है वो ठंड होता है, तब इसको नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। अभी जो स्थिति है इसके हिसाब से इंडियन ओशन डाइपोल अभी न्यूट्रल कंडीशन में है और तटस्थ है। और हमारा जो पूर्वानुमान है, ये पूर्वानुमान के हिसाब से मानसून की टाइम प्रशांत महासागर में जो इंडियन जो एनसो कंडीशन है वो जैसे अभी तटस्थ है ऐसे ही तटस्थ रहने का उम्मीद किया जा रहा है। मगर इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में होता है, जो अभी निष्पक्ष या तटस्थ है, वो नेगेटिव होने का उम्मीद किया जा रहा है। मैं आपको ये बोल के रखूं कि यूजुअली लानिना कंडीशन इंडियन मानसून को फेवर करता है और एल नीनो कंडीशन फेवरेबल नहीं होता है। सिमिलरली पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल अच्छे होते हैं और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल अच्छे नहीं होते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का ये प्रथम चरण जो पूर्वानुमान है वो समग्र देश के लिए एवरेज रेनफॉल कितना होगा इसको दर्शाता है। और इसके साथ साथ जैसे आपने देखा ये पहले बार हम देश में होने वाले सीजनल रेनफॉल का स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का पूर्वानुमान किए हैं, और ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से
पूरे देश में लगभग सामान्य वर्षा होने का उम्मीद किया जा रहा है जून से सितंबर के बीच, एक्सेप्ट सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे मेजर पार्ट ऑफ उड़ीसा, झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़, बिहार और एडजॉइनिंग ईस्ट यूपी, असम। इस इलाका में जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ बिलो नॉर्मल रेनफॉल का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा जितना एरिया है देश में उसमें सभी जगह में नॉर्मल या एबव नॉर्मल प्रोबेबिलिटी रेनफॉल का उम्मीद किया जा रहा है। वो ये सभी रेनफॉल को लेकर हम जो पूर्वानुमान इस बार दिए हैं इसका आंकड़ा तैयार किया गया है और ये आंकड़ा है 98% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज, यानी 88 सेंटीमीटर का 98% विथ मॉडल एरर ऑफ ±5%। जैसे सचिव महोदय ने बता रहे थे, इस बार हम कुछ प्रमुख स्टेप्स लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए हैं। पहला ये है कि जैसे हम सिर्फ स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट फोरकास्ट सिस्टम और मॉनसून मिशन कबल फोरकास्ट सिस्टम यूज करके पहले सीजनल फोरकास्ट का पूर्वानुमान कर रहे थे, इस बार हम इसमें थोड़ा परिवर्तन किए हैं। हम सिर्फ एक डायनामिक मॉडल यूज नहीं करते हुए अवेलेबल सभी ग्लोबल डायनामिकल मॉडलिंग फोरकास्टिंग सिस्टम को प्रयोग करके एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल MME सिस्टम डेवलप किए हैं। वही डेवलप्ड MME सिस्टम को यूज करके और स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम को यूज करके इस बार का जो पहला पूर्वानुमान आज जारी हुए हैं इसको तैयार किया गया है। ये मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम जो हम डेवलप किए हैं ये सिंपल एवरेजिंग सिस्टम नहीं है। ये विश्व में उपलब्ध कुछ बहुत एक्यूरेट डायनेमिकल फोरकास्टिंग सिस्टम को आधार करके रोबस्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करके ये सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस सिस्टम के माध्यम पे हम सिर्फ ऑल इंडिया नहीं, पहले बार इस बार हम इंडिया में डिफरेंट प्रांत में बारिश कितने होने वाले हैं इसका पूर्वानुमान कर रहे हैं। और एक नया कदम हम लिए हैं कि जब हम सेकेंड स्टेज फोरकास्ट जारी करेंगे बाय एंड ऑफ मई, तब हम ये ऑल इंडिया सीजनल फोरकास्ट का अपडेट देते हुए आपको जून महीने का फोरकास्ट उपलब्ध कराएंगे। यही मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम और स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम यूज करते हुए हम मानसून का 4 महीना का पूर्वानुमान इस बार इसका प्रीवियस महीना का लास्ट वीक में जारी करेंगे। यानी जून महीना में होने वाले बारिश ऑल इंडिया और इंडिया के सभी प्रांत में होने वाले बारिश का पूर्वानुमान हम मई लास्ट वीक में जारी करेंगे। जुलाई महीने का पूर्वानुमान जून महीना का लास्ट वीक में जारी करेंगे। अगस्त महीने का पूर्वानुमान जुलाई महीने का लास्ट महीने में जारी करेंगे और सितंबर का पूर्वानुमान हम अगस्त महीने का लास्ट में जारी करेंगे। और ये सिर्फ जैसे प्रीवियस ईयर में सिर्फ हम एक आंकड़ा आपको दे रहे थे, ऐसा नहीं, मगर ऑल इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा इसका भी पूर्वानुमान करेंगे। इसके साथ साथ जो 4 होमोजेनियस रीजन का पूर्वानुमान पहले कर रहे थे वो पूर्वानुमान भी हम जारी रखेंगे। हमारा जो सेकेंड स्टेज फोरकास्ट होगा जो कि मई महीने के एंड में यानी लास्ट वीक में हम जारी करेंगे। हमें उम्मीद है कि हम ये सभी जो नया कदम उठाए हैं इसमें जो मिनिस्टर फॉर साइंस का जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है सभी सम्मिलित है और ये जो कंबाइंड अप्रोच में हम नया शुरुआत कर रहे हैं
ये मानसून पूर्वानुमान को और अधिक प्रयोगशील करेगा, अधिक सटीक करेगा और ये हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्लानिंग प्रोसेस में स्पेशली बहुत सहायक होगा। धन्यवाद। So thank you, Dr. Mohapatra, for briefing the details of long-range forecast in Hindi. And unfortunately, we don't have the provision of taking your questions, etc. But you can always post questions in my Twitter, as well as you can send emails to both to me as well as Dr. Mohapatra DGM. So we will try our best to give you a kind of explanation as well as clarification. And if you want more details, also we will be giving you. And also we will be immediately posting our the press release in Word format, as well as my presentation in IMD's website, which you can download it and you can go through it. And if you have still any further questions, I will be very happy to give you the answers. Thank you very much. Thank you very much. You done? बंद करो। Forecast for the monsoon rainfall by the IMD. That was the webinar you were just witnessing, and it's good news coming in as has been predicted. Normal rainfall for the entire country except for certain parts in the northeast, for example. And we'll be discussing all that in detail in this edition of Atmanirbhar Bharat. The IMD, as we were telling you just a short while ago, issued its operational forecast for the monsoon season, June to September. And rainfall for the country. Before we begin our discussion on that, let's take a look at what we know of the IMD. तो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस वक्त आप वेबिनार देख रहे तो एक अच्छी खबर यहां पर पूरे देशवासियों के लिए, जहां पर समूचे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून की जो है वो हम बात कर सकते हैं जून से सितंबर तक की जो अवधि दी गई है उसमें सामान्य रहने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। और जैसा कि हम जानते हैं कि अच्छी बारिश, अच्छी मानसून जो है वो हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर सीधा उस पे मानसून पर निर्भर करते हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे और लगातार उनके साथ चर्चा करते रहेंगे। लेकिन हम आपको जिस तरह से बता रहे थे कि तमाम चीजें हैं आज जो मौसम विभाग के साथ से हमें जानकारी दी गई, कृषि, सिंचाई, नौवहन की बात करें, विमानन की बात करें, पटरीय तेल अन्वेषण जैसे मौसम के प्रति जो बेहद संवेदनशील गतिविधियां रहती हैं, उन तमाम चीजों का इस वक्त असर होता है। जो पूर्वानुमान जारी किया और कहा गया है मौसम विभाग की ओर से कि मई में दोबारा दूसरा जो पूर्वानुमान है वो जारी किया जाएगा। Right. Well, as we were telling you, the IMD just a short while ago issued its operational forecast for the monsoon season, June to September rainfall for the country. Before we begin our discussion, we are waiting for our guests to connect. Let's take a look at what the operational IMD forecast for the monsoon season, June to September rainfall for the country as a whole in 2 stages. The first stage forecast is issued in April and the second stage forecast is issued in May, June. These forecasts are prepared using the state-of-the-art statistical ensemble forecasting system that is critically reviewed and improved regularly through in-house research activities. The India Met Department was established in 1875. It is the National Meteorological Service of the country, principal agency in all matters relating to meteorology, allied subjects, takes meteorological observations, provides current and forecast meteorological information, facilitates optimum operation of weather-sensitive activities. The activities it impacts are agriculture, irrigation, shipping, aviation, offshore oil explorations, etc., and warns against severe weather phenomena like tropical cyclones, northwesters, and also of dust storms, heavy rains, and snow, cold and heat waves, etc. It also warns against incidents causing destruction of life and property and provides Met statistics required for agriculture, water resource management, industries, oil exploration and other nation-building activities. The Met Department further conducts and promotes research in meteorology and allied disciplines. तो बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं।
Dr. KJ Ramesh, former Director General IMD, or Dr. DS Pai, Scientist and Head Office of Climate Research and Services IMD पुणे। बहुत बहुत स्वागत है हम दोनों ही खास मेहमानों का हमारे इस आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष संस्करण में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यहाँ पर डॉक्टर KJ रमेश से हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर रमेश, किस तरह से आप देखते हैं एक अच्छी खबर यहाँ पर आई है मौसम विभाग की ओर से। हम सभी को मानसून का इंतजार रहता है और मानसून इस साल अच्छा रहने वाला है, सामान्य रहने वाला है। सुनने के लिए देश भर के लिए काफी एक अच्छी खबर यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से आई है, क्योंकि हम सभी निर्भर करते हैं एक अच्छी बारिश पर, अच्छी मानसून पर। किस तरह से देखते हैं जो आज वेबिनार में तमाम बातें कही गई और जो ये पूर्वानुमान जताया गया? यह देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लगातार 5वीं बार जो है इंडिया इज गोइंग टू सी very good rainfall distribution as assessed and brought forward and forecasted just now by the Secretary Ministry of Earth Sciences and Director General of Meteorology. So 5वीं बार जो है इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एकदम बढ़िया साल होने का है। पिछला जो है साल 2020 जो है रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है इंडिया में, 300 मिलियन मेट्रिक टन टच किया है। सो उसी सिलसिला पिछला 4 साल का जो सिलसिला है अच्छी पैदावार के साथ जो है होने का देखा है हमने, वही 5वीं बार भी देखने को पूरा चांसेस है और उम्मीद भी है। Well, coming to you, Dr. Ramesh, when we talk about the forecast this year, it's predicted that there will be normal monsoon across majority parts of the country, except perhaps in the northeast. What does that mean, particularly for various sectors? Say, for example, for agriculture, what do we understand by a normal monsoon? See, there are two things. Normal monsoon is the country as a whole, one figure, average figure, that is 98% it is given. But along with that, for the first time now, distribution of the rainfall is also provided through a map. As you told that only except east and northeastern part of the country where some deficit is projected at the moment. This is the first assessment. Rest of the parts of the country are where rain-fed agriculture goes on, where oil seeds, pulses, cereals production is there. So there also majority of the areas are going to receive good distribution of rainfall. So if you see, consider that way to eastern part of India, most of the eastern parts of India, particularly UP part, जो है, it is fully irrigated by river systems from Himalayas, and similarly Madhya Pradesh also supported by good irrigation systems. So on the whole, the irrigation supports, river irrigation supports in those areas where it is slightly less, except regions of Jharkhand and parts of Bihar. But this is a first assessment we will have to keep in mind. Second update will come in the month of end of May or first week of June. So that will further provide the update over this. But as of now, scenario is highly promising and looking to be very good for Indian agriculture. बिल्कुल, डॉक्टर पाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाई, नई पूर्वानुमान रणनीति का यहाँ पे जिक्र हुआ और उसके बारे में भी यहाँ पर बात कही गई। आईएमडी पुणे का इसमें विशेष योगदान रहा है। किस तरह से एक हम कह सकते हैं एक वैश्विक मॉडल, जलवायु मॉडल पर आधारित एक बहु मॉडल असेंबल फोरकास्टिंग सिस्टम विकसित यहाँ पर किया गया है। तमाम बड़े शब्दों का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हम आम भाषा में इसको समझाने की कोशिश करें हमारे देशवासियों को, कैसे आप समझा पाएंगे? नमस्कार। देखिए, आप लास्ट ईयर तक हम लोग मेनली स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज कर रहे थे, लेकिन लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव बीन ट्राइंग विद आवर ओन मॉडल, मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम. So it had some skill over spatial distribution. So we found that if you adopt more models and एक मॉडल का एक जगह में एक एरिया में ज्यादा स्किल है, तो यदि आप 3-4 मॉडल या ज्यादा मॉडल एक साथ यूज करेंगे, आपका स्किल मोस्ट ऑफ द पार्ट में अच्छा होगा. सो ये है बेसिकली आइडिया ऑफ यूजिंग MME, multi model. That means several models are used to get a better skill in most parts of the country.
So we have been working last few years. Now we found that there is a useful skill and that can be operationalized. That's why this year we have come up with this strategy of giving forecast, not only जैसे हम लोग quantitative forecast देते हैं all India और for homogeneous large area में देते थे, इसके साथ साथ probabilistic forecast. So this is the way in globally everywhere seasonal forecast is being issued. Generally जो probabilistic forecast देते हैं. So the same way we have adopted in India also. So this is the first time, and I'm sure that people all will like this methodology, and we will have an update, as Dr. Ramesh said, in May, and also every month, as has been said, we will also issue monthly forecast for every month. Right, when we talk about the long period average, what are we talking about? And if we talk about the accuracy of the IMD's forecast, what are the factors that have enabled you to make such accurate forecasts? Because we know when we look back at 2020, Dr. Pai, when we look back at 2020, it has been almost really accurate. Particularly when we look at certain natural disasters, like for example, Super Cyclone Amphan, for example. And even the origin and the direction of Cyclone Nisarga, for example. So what has enabled the IMD to advance to such an extent? As you have seen that already for cyclone forecast, we have already achieved a very good accuracy. So that is being done for Nisarg or Amphan. We have our forecast has been very accurate. So our monsoon forecast, if you see that for 2020, we had an updated 102%. As you have correctly said, Nisarg had contributed good rainfall in the month of June over many parts of the country, and that had given good rainfall in June, and ultimately some low pressure system activity also over the country contributed to rainfall of 109%. So last year we had, as you correctly said, good rainfall, but cyclone contribution was only in the early part, and otherwise mostly we had based on the monsoon trough movement or contributing by low pressure and depression activity, and also we also had many parts flood type situation also. But as said, last year we had a good distribution of rainfall contributing to good agriculture. बिल्कुल, तो इनके पूर्वानुमान में काफ़ी सटीकता आई है और लगातार इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर एम महापात्रा, डीजी आईएमडी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर महापात्रा आपका आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में। सबसे पहला सवाल यही आपसे है कि लंबे समय से एक अच्छी खबर का हम इंतजार कर रहे थे और मौसम विभाग के हवाले से एक अच्छी खबर आ रही है कि एक अच्छा मानसून रहने वाला है इस साल, और अच्छे मानसून पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन सबसे पहले जो आपने ये खबर दी है देशवासियों को, अगर थोड़ा सा और इसे विस्तार से आप बताना चाहें कि कैसे एक अच्छा मानसून रहने वाला है और क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं हम। जैसे आपने बताया है कि मानसून भारत का लाइफलाइन है और many areas about 70 to 90% जो रेनफॉल होता है एक सालों में वो मानसून सीजन में भी होता है। इसलिए मानसून का पूर्वानुमान सटीक ढंग से देने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग सभी टाइम प्रयत्नशील है, और इस बार भी जैसे प्रीवियस ईयर्स में मिडिल ऑफ अप्रैल में हम मानसून का पूर्वानुमान करते हैं, आज पूर्वानुमान जारी किए हैं। हमारा आज जारी हुए पूर्वानुमान से ये पता चलता है कि 2021 का जो मानसून सीजन है जून टू सितंबर, इसमें पूरे कंट्री के लिए जो एवरेज रेनफॉल होने वाले हैं वो सामान्य रहेगा। सामान्य का मतलब यही होता है कि जो एवरेज रेनफॉल होता है 88 सेंटीमीटर ओवर द कंट्री, इसका 96 से 104% के बीच में रहने का उम्मीद किया जा रहा है। हमारा भी एक मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिव फोरकास्ट भी जारी हुआ है, और ये क्वांटिटेटिव फोरकास्ट जारी करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम और एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम का प्रयोग किए हैं। पहले बार लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के लिए
हम एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्ट सिस्टम इस बार हमारे जो क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस डिवीजन पुणे में है इसमें तैयार हुआ है। इसमें इस समय उपलब्ध सबसे अच्छा डायनेमिकल मॉडलिंग फोरकास्टिंग सिस्टम को लेकर और एक रोबस्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक प्रयोग करके एक मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। और ये सिस्टम को 1982 से डाटा लेकर परीक्षा किया गया है। इसका एक्यूरेसी रीजनेबल है। तो इसके बेसिस पे इस बार जो हम पहला चरण के पूर्वानुमान जारी किए हैं, इसमें पता चलता है कि मानसून इस बार लॉन्ग पीरियड एवरेज का 98% होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये मॉडल का जो साधारण त्रुटि है वो है ±5%, यानी 98% ±5% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल इस बार मानसून सीजन में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। Mohapatra ji, at this point, I'd like to ask you that you're talking about the statistical model, various models that are being used to assess the weather, to predict the weather, to make weather forecasts. We believe the IMD has been issuing monthly forecasts for every month using an indigenously developed statistical model. As the aim is to move towards Atmanirbharta, towards self-reliance in every field, in weather forecasting too, we are aiming for that. How is this a major step towards that achievement? How far do we have to go yet? आपने सही बताया है। वेदर एंड क्लाइमेट के क्षेत्र में आप कंपेयर करें सारा भारत को और विश्व के साथ, आप देखेंगे कि हम बहुत ही क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, हमारे ये आत्मनिर्भरता हमारे ये एरिया में जितना कंट्री उस सभी को भी हेल्पफुल होता है। और मानसून फोरकास्ट जैसे आपने बताया, मंथली फोरकास्ट हम पहले सिर्फ जुलाई और अगस्त महीने के लिए जारी कर रहे थे, मगर इस बार हम हर महीने के लिए मंथली फोरकास्ट देंगे, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का मंथली फोरकास्ट जारी करेंगे। सिर्फ इतना नहीं, प्रीवियस ईयर्स में सिर्फ हम एक ही आंकड़ा जारी कर रहे थे कि कितना बारिश होगा ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, और इस बार हम ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल देते हुए पूरी भारतवर्ष में डिफरेंट प्रांत में कितना बारिश होने का है वो सभी का भी पूर्वानुमान करेंगे। जैसे आज हम ऑल इंडिया सीजनल रेनफॉल को पूर्वानुमान जारी किए हैं डिफरेंट एरिया के लिए, जैसे कि ये लगभग नॉर्मल रहने की उम्मीद है, मगर ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का गंजटी क्षेत्र, झारखंड, बिहार, एडजनिंग ईस्ट यूपी, नॉर्थ छत्तीसगढ़, इसमें बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली जून महीना का जो रेनफॉल होगा इसका पूर्वानुमान हम मई महीना का लास्ट वीक में जारी करेंगे, जुलाई महीने के लिए जून महीने का लास्ट वीक में, अगस्त महीने के लिए जुलाई महीने का लास्ट वीक में, और सितंबर महीने के लिए अगस्त महीने का लास्ट वीक में ऐसे ही पूर्वानुमान जारी करेंगे। इसमें ऑल इंडिया एवरेज रेनफॉल कितना होगा और इंडिया का डिफरेंट प्रांत में कैसे बारिश रहेगा इसका पूर्वानुमान होगा। और ये सभी जो डेवलपमेंट हुआ है ये कंप्लीटली विद इन IMD और मिनिस्टर ऑफ आर्ट साइंसेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी मिलकर किए हैं। ये पूरी सेल्फ रिलायंट है। बिल्कुल, डॉक्टर रमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमेश, जिस तरह से हम अभी बातचीत कर रहे थे कि प्रौद्योगिकी के विकास से, तकनीक के विकास से इस वक्त जो हम अपने मौसम विभाग के जो उपकरण देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और कितने सटीक अनुमान लगाने में आज हम कितने सक्षम हो गए हैं। डॉक्टर रमेश, आप किस तरह से देखते हैं कि बड़ा बदलाव यहाँ पर हम महसूस कर रहे हैं? अगर हम तकनीक की बात करें या हम विभिन्न उपकरणों की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, उस लिहाज से कितना आपने अपने विभाग को, क्योंकि आप पहले इस विभाग में रह चुके हैं, कितना इस विभाग को आप तरक्की करते हुए देख रहे हैं? इस विभाग का तरक्की जो है पर्टिकुलरली फोरकास्टिंग के हिसाब से है, साइक्लोन हो, मानसून हो, बारीकी से बारीकी ग्रिड स्केल में प्रेडिक्शन करने का क्षमता पाया गया है पिछले 3-4 सालों में।
वो उपलब्धि हुआ है। हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग जो है 10 पेटाफ्लॉप की कंप्यूटिंग पावर का जो एडवांसमेंट किया गया इंडिया में प्रोक्यूरमेंट करके, उसकी वजह से क्या है, हम जो है बहुत ही फाइन स्केल में प्रेडिक्शंस जनरेट कर पा रहे हैं। बाकी फॉर एग्जांपल साइक्लोन का प्रेडिक्शन है 3 किलोमीटर की ग्रिड पे होती है। डेली अगले 10 दिनों की प्रेडिक्शन है 9 से 12 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे होती है। तो 5 साल पहले ये होती थी 36 किलोमीटर की ग्रिड स्केल पे। सो इतना ऑलमोस्ट 1/3 जो है फाइन ग्रिड कंप्यूटेशन कर पा रहे हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की पावर बढ़ाने से। सो इसके लिए काफी इन्वेस्टमेंट किया है मिनिस्ट्री ने, एंड उसका जो है उपलब्धि हम देखने को आज मिला है। पहली बार जो है पूरा देश में मानसून बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है, और कहाँ ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा, कहाँ सामान्य की तरह से बारिश रहेगी। उसके साथ साथ जो है हर महीने भी प्रोबेबिलिस्टिक रेनफॉल प्रेडिक्शन का जो स्टेप है इस बार लिया गया। ये सब हुआ है। जो ऑलरेडी उपलब्धियां है साइक्लोन प्रेडिक्शन का, हेवी रेनफॉल प्रेडिक्शन का, उसके टेम्परेचर, लाइटनिंग प्रेडिक्शन, इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म प्रेडिक्शन के साथ साथ सीजनल एंड मंथली मानसून प्रेडिक्शन में जो टेक्नोलॉजी जो है पर्टिकुलरली कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरी तरह से लेते हुए इसकी उपलब्धि आज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो एक अच्छा मानसून यानी कि किसानों के हाथों में एक बेहतर कृषि उत्पादन, और एक खराब मानसून यानी कि हम बात कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में पेशा। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो एक सामान्य मानसून का अर्थ होगा कि कृषि क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को एक बेहतर समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। डॉक्टर पाई हमारे साथ जुड़े हुए, किस तरह से आप देखते हैं अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, एक फसल की विफलता, एक फसल की सफलता, एक अच्छे मानसून, एक अच्छी बारिश पर निर्भर करते हैं। इस तरह की एक अच्छी खबर हमारे किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर हो सकती है? देखिए, जैसे पहले बताया था, लास्ट 5 साल में हमें ऑलमोस्ट नॉर्मल रेनफॉल मिल रहे और अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी आपने वो जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा होगा, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, मोस्ट ऑफ द पार्ट नॉर्मल या अबव नॉर्मल रेनफॉल की बारिश मिलने की संभावना है। तो इसलिए कृषि के लिए भी ये बहुत उपयुक्त होगा। तो जैसे पहले बताया था, लास्ट ईयर हमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। सो अभी वी आर पासिंग थ्रू अ वेरी टफ पैंडेमिक टाइप ऑफ सिचुएशन। तो एग्रीकल्चर में भी हमको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बारिश, नॉर्मल रेनफॉल डेफिनेटली विल सपोर्ट एग्रीकल्चर। तो इस एटलीस्ट ये साइड में से हमको अच्छा बेनिफिट मिलने की संभावना है। Right, Mr. Mohapatra, where different departments of the government have different demands. Which are the departments and how have you been able to touch them in different ways? Have the demands of various government departments changed over the years, or is it the same demands that every department has from you every year? आप आत्मनिर्भर के बारे में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है, आप इसको देखें, इसमें देखेंगे कि सभी क्षेत्र में देयर इज ए डिमांड सप्लाई चेन, और ये डिमांड सप्लाई चेन के हिसाब से हमको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा और हमारे जो सर्विसेज और सेवाएं हैं उपलब्ध कराना पड़ेगा। वेदर एंड क्लाइमेट सर्विसेज एक सर्विस है, इसका फोकस्ड एक्यूरेसी इम्प्रूव हुआ है रिसेंट ईयर्स में, इसका रिजोल्यूशन इम्प्रूव हुआ है। जैसे रमेश साहब ने बता रहे थे, अभी हम बहुत छोटे छोटे इलाके के लिए एक्यूरेट फोरकास्ट कर पा रहे हैं। इसको देखते हुए बहुत सारे सेक्टोरल एप्लीकेशंस में भी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आगे आए हैं। जैसे मानसून का बात करें तो मानसून का तो पहला एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में था, और इसके साथ साथ हाइड्रोलॉजिकल सेक्टर में, वाटर सेक्टर में मानसून का बहुत एप्लीकेशन है, जैसे कि डैम मैनेजमेंट, अदर वाटर बॉडीज मैनेजमेंट, रिवर एंड फ्लड्स मैनेजमेंट, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, फ्लैश फ्लड मैनेजमेंट। ये सभी के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग दूसरे सभी संस्था के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पदक्षेप लिए हैं। जैसे कि अर्बन फ्लडिंग के लिए हम मुंबई जैसे सिटी, चेन्नई सिटी के लिए अर्बन फ्लड वार्निंग सिस्टम भी डेवलप करके इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली फ्लैश फ्लड, जिसमें वजह से हिली एरिया में स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स,
वेस्टर्न घाट्स एरिया, ईस्टर्न घाट्स एरिया, वहाँ भी हम फ्लैश फ्लड्स गाइडेंस अभी हम इशू कर रहे हैं। और रिवर एंड फ्लडिंग के लिए हम स्पेशली जो फ्लड प्रोन जोन्स होते हैं, इसमें के जो अवधि 3 दिन के लिए हम फोरकास्ट पहले दे रहे थे, इस साल से हम 5 दिन के लिए पूर्वानुमान देंगे और इसके साथ साथ इसका एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट करने के लिए भी कोशिश करेंगे। ये सभी पूर्वानुमान फ्लड मैनेजमेंट के लिए होगा। सिमिलरली जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें भी हम बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे हीट एक्शन प्लान हो गया, कोल्ड एक्शन प्लान हो गया, वो इंटीग्रेटेड वे में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और इंडिया मेट्रो डिपार्टमेंट एंड एनजीओस एक्सेट्रा मिलकर कर रहे हैं। इसमें भी जो डेथ्स हो रहा था हीट वेव की वजह से, वही बहुत कम हो चुका है। और आप ट्रैवलिंग सेक्टर देखें, जैसे एविएशन, बहुत सारे नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं, इसके लिए भी हम स्पेशल फोरकास्ट एविएशन सेक्टर पे इशू कर रहे हैं, मेरीन फोरकास्ट। और नाउ वाटर सेक्टर, ट्रैवल माने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट भी बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी हम हमारा एप्लीकेशंस वहाँ बढ़ा रहे हैं। एनवायरमेंट सेक्टर में भी आप देखेंगे वेदर और एनवायरमेंट अलग नहीं है। वेदर का फोरकास्ट एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है और एनवायरमेंट का इंफॉर्मेशन वेदर के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए हम एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग के बारे में भी मिनिस्टर ऑफ आवासन की तरफ से और भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से पदक्षेप लिया गया है। पावर एंड एनर्जी सेक्टर, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी, इसको भी जो डिमांड को देखते हुए हम स्पेसिफिक फोरकास्ट अभी जारी कर रहे हैं, डिजिटल फोरकास्ट उपलब्ध हो रहे हैं, इसको लेकर पावर सेक्टर भी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसका परिणाम ऐसे हुआ है कि जो हमारा सोशल इकोनॉमिक उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां में वेदर एंड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को यूज किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे सेक्टर है, सोशल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, कम्युनिटी एक्टिविटी हो, ह्यूमन एक्टिविटी हो, सभी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो, सभी क्षेत्र में अभी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो एक्यूरेट और हाई रेजोल्यूशन फोरकास्ट है और वार्निंग सर्विसेज है, इसको इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में सिर्फ हम इंडिया को नहीं, कंप्लीट साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एरिया को हम वेदर का जो सीवियर फिनोमेना होता है, जैसे साइक्लोन हो, थंडरस्टॉर्म हो, हीट वेव, कोल्ड वेव हो, वेव्स हो, ये सभी के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। ये सभी की नतीजा ये हुआ, इससे भारतवर्ष में जो जन हानि हो रहा था, लोक मृत्यु हो रहा था, इसमें तो कम हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे सभी कंट्री में भी सीवियर वेदर की वजह से जो डेथ्स हो रहा था, इसको भी कम किया गया है। और अभी चैलेंज यही है कि जो ये सीवियर वेदर की वजह से जो हमारा प्रॉपर्टी लॉसेस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इसको तो हम अभी कम कर रहे हैं, मगर फिर भी अपॉर्चुनिटी है कि हम और ज्यादा इसको कम करें। इसके लिए हम एक कदम उठाए हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम। इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम के जरिए हम हर स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल डॉक्टर महापात्रा, इस वक्त बिल्कुल हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। मैं 3 विशेषज्ञों से आग्रह कि हमारे जुड़े रहें और हम सीधे रुक करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही सुचारू रूप से कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमलेस तरीके से देश में चल रही है। आज सवेरे की अगर मैंने डाटा देखा तो 11 करोड़ 73 लाख के ऊपर जो है डोजेस जो है देश में लोगों को दे दी गई थी। आज सुबह मैंने ये भी देखा कि इस समय लगभग 54 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स देश में थे जो 7 दिन से जहां पर कोई पेशेंट कोविड का नहीं आया। 34 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पे लगभग 14 दिन से पेशेंट नहीं आया। 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां 21 दिन से पेशेंट नहीं आया और इसके अलावा 44 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जहां पिछले 28 दिन से कोई पेशेंट नहीं आया। तो कुल मिलाकर हम लोग जितना भी पिछले 1 साल का अनुभव है, उसके प्रयासों को, उस अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर जो जो चीज़ों की और आवश्यकता है
अगर देश को और ज़्यादा ऑक्सीजन की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए भी कल और भी ज़्यादा उसको रैंप अप करने के लिए निर्णय लिए गए हैं। उसको भी हम तेज़ी से और डेवलप कर रहे हैं। अभी कल मैं सभी जो विशेष रूप से जो कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट्स हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ कहाँ देश में बेड्स की कमी हो सकती है या कमी है, या जिसके कारण किसी भी प्रकार से पेशेंट्स को तकलीफ़ महसूस हो रही है, उसको कैसे रैंप अप करना है, इसके बारे में लोग सब सामूहिक रूप से कल विचार करेंगे। और इसी प्रकार से सोमवार को सारे अपने जो एम्स हैं देश के, उनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हम एम्स के माध्यम से कोविड के खिलाफ जंग को और ज़्यादा कैसे देश भर में स्ट्रेंथन करना है, एम्स में कैसे कोविड से रिलेटेड जो लड़ाई है उसकी फैसिलिटीज़ को और रैंप अप करना है, उसकी भी सारी की सारी तैयारियां करेंगे। फिर से लोगों से मेरी अपील है कि जो हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, इसको हमको नहीं भूलना है। मुझे खुशी है कि कल भी देश में लगभग 15 लाख टेस्ट हुए हैं। एक लैब से शुरू हुई यात्रा वो 2458 लैब्स तक पहुंच गई है। बार बार एक ही बात प्रधानमंत्री जी से लेकर और सभी लोग दोहरा रहे हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी भी कीमत पर हम ना भूलें। अगर देशवासी इस बात को गंभीरता से ले लेंगे कि इस समय जब वैक्सीनेशन भी साथ साथ चल रहा है, हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क, साबुन से हाथ धोना और 2 गज की दूरी, और जो सुपर स्प्रेडर बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉइड करना है। मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकॉशंस को नहीं छोड़ना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2020 में कोविड के खिलाफ लड़ाई को हम लोगों ने एक सफलता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, वैसे ही ये फेज़ भी जो अभी आया है, ये फेज़ भी हमारा निकल जाएगा और इस लड़ाई में भी जो चैलेंजेस हैं उनको हम पूरी तरह से ओवरकम करने में सफल होंगे। डॉक्टर साहब एक तरफ तो पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री आप सुबह से जैसे लगे हुए सारी सिचुएशन देख रहे हैं, बेड्स का, ऑक्सीजन का, वहीं कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है जिसमें पैसों को लेकर भी बात करेंगे कि कीमत कम करी जाए। छत्तीसगढ़ रायपुर का एक मामला है सर जिसमें सरकारी अस्पताल का डॉक्टर 16,000 में वो इंजेक्शन देखिए सरकार को एक नजर बनानी। देखिए ऐसा है कि ब्लैक मार्केटिंग के लिए रेमडेसिविर के बारे में स्वयं हमने भी, हमारे मंत्रालय ने भी, और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है उसमें हमारे जो सहयोगी मंत्री हैं मंडाविया जी, उन्होंने भी एक तरफ तो उन सब कंपनियों के साथ मीटिंग की है बहुत विस्तार से जो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन करती हैं, उनको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को एनहेंस करने के लिए कहा गया है और उन्होंने उस दिशा में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से सारे देश के स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स को सख्त इंस्ट्रक्शन की गई है कि रेमडेसिविर के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कोई अगर होर्डिंग कर रहा है या कोई भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, काला बाजारी कर रहा है, पेशेंट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो उसके खिलाफ जितनी भी सख्त से सख्त सज़ा है वो उसको देनी चाहिए। जनता के लोगों को भी हमारे को ये अपील करनी है कि ऐसी शिकायतों को आप अपने अपने स्टेट्स में स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स के पास भी भेजिए, और अगर हमारे भारत सरकार के अंदर भी ऐसी शिकायतें आएंगी स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, प्लेसेस और पीपल, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सच पीपल, आई कैन अश्योर यू दैट।
करने में देरी हो गई। तो बिल्कुल कोरोना की रोकथाम के लिए इस वक्त तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त की जानकारी देते हुए, सुबह हमने देखा कि उन्होंने एम्स का दौरा भी किया था, वहां पे किस तरह से जो ट्रॉमा सेंटर में काम चल रहा है उस पर उन्होंने निगरानी की थी। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि जो विभिन्न राज्यों के साथ भी लगातार केंद्र सरकार संपर्क बनाए हुए हैं, जिसकी भी कमी आ रही है, चुनौतियां जो सामने आ रही हैं उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। और सोमवार को जो देश भर में जो एम्स हैं उनसे भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वहां पर कोरोना की रोकथाम किस तरह से हो रही है। रेमडेसिविर का एक पत्रकार ने सवाल उठाया तो उस पर भी कहा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के लिए अगर कोई भी संस्थान या कोई भी हॉस्पिटल की तरफ से अगर किसी भी मरीज को तंग किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। Well, you were listening in to Dr. Harshvardhan, and as Jaya just said, he has expressed full confidence that this stage of the spike in the fight against COVID-19 will be overcome with the same success as the first fight was overcome. And he answered numerous questions of the press regarding various issues. Meanwhile, going back to our discussion on the weather forecasting done by the India Meteorological Department, how significant it is, even as the Met Department announced the first part of its prediction forecast for the monsoon rains just a short while back. Coming to you, Mr. Pai, we believe that the year-to-year variability of the Indian summer monsoon rainfall is influenced by many global phenomena, among them the El Nino or Southern Oscillation. That is what we as laymen have heard many times. What is the prediction for El Nino this year? How accurate has that been as far as predicting the monsoon and affecting the monsoon in the previous year has? See, as you know that last year we had La Nina conditions and which peaked this winter, and now as of now La Nina conditions has turned into ENSO neutral condition. And most of the models, including the monsoon machine climate forecasting system of IMD, is indicating that this neutral ENSO conditions will continue in the monsoon season also. And as far as the accuracy of these models, it has been seen that most of the models give a relatively better skill actually as far as El Nino forecast. So this is what our experience. You may be remembering even last time also, when we had initially given the forecast in 2020, we had predicted a weak La Nina condition in the later part of the monsoon season, and therefore there will be increased rainfall activity in the second half. That actually happened. So, and you know that this ENSO condition has got a significant impact, link with the monsoon. So this year, as I said, La Nina neutral ENSO conditions are likely to continue during the monsoon season. So therefore, it will not have much impact. However, as far as the Indian Ocean dipole conditions, which is another important factor which influence the monsoon. So this is also, at present, it is a neutral IOD conditions, but models are indicating there will be a negative IOD during the monsoon season. Though models have got a good skill in predicting the IOD, but the IOD links to the monsoon is a weak in the model. So that is why some of the models are indicating much more higher rainfall than what we are expecting actually, because its IOD impact in the models are less. So we are, as far as IMD forecast is concerned, we are expecting ENSO neutral condition during the monsoon and negative IOD conditions during the monsoon season. बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, यहाँ पर हम डॉक्टर हर्षवर्धन को भी सुन रहे थे और हम जानते हैं कि इस देश में इस वक्त क्या कुछ स्थिति चल रही है और कई क्षेत्रों पर हमने इसका असर देखा है। अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो कह सकते हैं कि एक अच्छा मॉनसून इस वर्ष एक स्विंग कारक की तरह होगा, क्योंकि जिससे अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो GDP की बात करें तो उसकी संख्या में भी हम वृद्धि देखेंगे और तमाम क्षेत्रों में एक अच्छी वृद्धि के लिए, एक अच्छे संकेतों के लिए एक अच्छे मॉनसून की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी। किस तरह से आप देखते हैं अर्थशास्त्रियों का यह मानना और जो पूरा मॉनसून का प्रभाव है हमारे देश पर, हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों? आप पिछले साल का देखेंगे, कोरोना की वजह से काफी सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी कम, टर्नओवर कम होके GDP का असर किया है।
एक ही सेक्टर है, अच्छी बारिश होने की वजह से किसान ने अच्छा पैदावार, उससे पूरा फायदा उठा के अच्छा पैदावार करने से कृषि क्षेत्र में हमें पॉजिटिव 4% प्लस ग्रोथ देखने को मिला है। तो इस साल भी उसी तरह उम्मीद हम पूरा रख सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जो कृषि क्षेत्र जो है देश में लगभग 55 से 60% तक आबादी जो है कृषि क्षेत्र और कृषि संबंधित क्षेत्रों में अपना रोजगार ढूंढते हैं। सो उस हिसाब से इस साल भी रोजगार, कृषि क्षेत्र की रिलेटेड रोजगार की समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी। उसके साथ साथ उत्पाद भी बढ़िया रहेगा। अच्छा मानसून के साथ अच्छा रिजर्वायर्स में पानी रहेगा, उससे जो है ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी अच्छा होगा। सब तरह से पहला जो है कोविड से जूझने के लिए इंटरनल डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन फूड नहीं रहेगा। सो उसकी वजह से देश के लिए काफी अच्छा स्थिति देखने को अच्छा मिल रहा है, अच्छी मानसून पूर्वानुमान की वजह से। बिल्कुल राइट। Well, a normal monsoon, very good news there for all our farmers. Coming to you, Dr. Mohapatra, we have understood, and it's not really very difficult to understand how our farmers are dependent on the weatherman and the Met department for their livelihood, for their produce. But when it comes to another sector, say for example the oil exploration sector, could you explain to us more about how your predictions, how your forecast can impact this sector, how the weather actually impacts the oil exploration sector? There are many activities along the coast and also inside the sea which are affected by weather and climate arising out of the ocean and also over the land areas. So oil exploration is one of them. People continue to work. There are many establishments along the coast for this purpose. They need safety and security so that they can save themselves from the hazards of weather and climate. So India Meteorological Department provides continuous monitoring and forecasting products for all such activities. As all of us know, there are various types of marine related hazards like the cyclones, thunderstorms, thundersqualls, strong winds near the sea area, and also the strong monsoon conditions. Apart from this, there could be the waves, significant wave heights, especially due to the very rough sea in association with the various types of weather systems. So all these affect the daily activities. So for this purpose, we have a special service called as Marine Weather Forecasting Services, which caters to all types of marine community, including the oil exploring agencies and the people. So we have various types of products for this purpose. For day-to-day operation, we provide the forecast for different divisions of Bay of Bengal, Arabian Sea, and the coastal areas. And these bulletins are very specific. Say, for example, for oil exploration purpose, specific information are provided from our offices in the coastal areas. We also provide similar information to the fishermen all along the coast and the fishery authorities. We provide the information to the port authorities, shipping authorities, for high sea shipping, and also the coastal shippings. And all these informations are very specific and it is target oriented, and these are provided at least twice a day on normal situation. And when there will be a depression or cyclone developing over the Bay of Bengal or Arabian Sea, the frequency of this information increases. And recently, because of this improvement in accuracy and because of this improvement in information and communication technology, we are also utilizing the various latest tools like we have GIS, and we are providing this information in a geo platform which can be utilized by
all these stakeholders. We also try to provide the impact-based information for all these forecasts so that people can use it directly to save life and property. बिल्कुल, डॉक्टर पाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पाई, जिस तरह से उन्होंने बताया डॉक्टर मोहपात्रा ने कि विभिन्न क्षेत्रों में हम इस वक्त देख सकते हैं कि आईएमडी के जो दायित्व है, आईएमडी की जिम्मेदारी हो जाती है, आईएमडी के पूर्वानुमान कई क्षेत्रों में काफ़ी मूलचूल बदलाव लाने में कामयाब हो रहे हैं। जिस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, आईएमडी अगर हम कह सकते हैं कि मॉनसून जो कोर जोन है उसके लिए एक अलग से पूर्वानुमान विकसित करने के लिए प्रयासरत है, जो देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। डॉक्टर पाई, आप किस तरह से देखते हैं कि अभी भी जब पहले चरण का पूर्वानुमान जारी किया गया तो उसके साथ साथ मौजूदा सांख्यिकी पूर्वानुमान प्रणाली के साथ साथ जो नई एमएमएमई आधारित पूर्वानुमान प्रणाली है उसका उपयोग किया गया, किस तरह से आप देखते हैं कि लगातार जो तकनीक का विकास हम यहाँ देख रहे हैं और भी ज्यादा सटीक यहाँ पर हम दिखते नजर आ रहे हैं और जो विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से वो आईएमडी के जो तमाम पूर्वानुमान है उनको और बेहतर करने में सफल हो रहे हैं? देखिए, जैसे बताया था, हम लोग जो एमएमबी इम्प्लीमेंट किया है इस बार, और इसके साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट लाया है, एक्चुअली मंथली फोरकास्ट देंगे और जो मानसून कोर्स विच इज द मेन एरिया, you get a maximum rainfall and also have large intra-annual variability. Here region, most parts of this coincides with also rain-fed regions of the country. तो therefore ये जो forecast ये area है मानसून कोर्स में, most many areas are rain-fed areas also. So by giving this forecast, that will help actually the agriculture in the rain-fed area. Now इसके साथ साथ जैसे बताया सीजनल फोरकास्ट के साथ आईएमडी ने एक्सटेंडेड रेंज, शॉर्ट रेंज भी बहुत एक्यूरेसी से बढ़ाया है, तो इसको सपोर्टिंग जैसे काम करेगा। तो सीजनल फोरकास्ट, नॉर्मल रेनफॉल फोरकास्ट दिया और एवरी वीक हमें एक्सटेंडेड रेंज भी एक एमएमई फ्रेमवर्क में है, वो आपको नेक्स्ट 4 वीक्स का वीकली फोरकास्ट देगा। तो जैसे आपको एक्शन लेना एग्रीकल्चर में, वेदर इरिगेट करना है या आपको पेस्टिसाइड करना है, ये भी एडवाइजरी दे रहे हैं बेस्ड ऑन एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन। और जो वीक में हम लोग फोरकास्ट मोर रेनफॉल और लेस रेनफॉल, डे टू डे फोरकास्ट हम लोग शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में देते हैं। फिर नाउकास्ट देता है इमीडिएटली क्या होगा। तो ये सभी फोरकास्ट एक साथ जब आप यूज करेंगे, मेनी ऑफ द सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर है या हेल्थ है, जैसे बताया था डैम मैनेजमेंट में, इसमें सभी आपको फायदा होगा। तो ये मंथली फोरकास्ट पे आपको एवरी मंथ में कैसे वेरिएशन है, क्या हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, क्या ये कर सकते हैं, उसका एक्टिविटी भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो ये फायदा है नए स्ट्रैटेजीज। Right. Dr. Ramesh, when we talk about Atmanirbhar Bharat and we talk about weather, the science of weather forecasting, if we look at the years ahead, how do you see youngsters, more and more youngsters, do you see that process, more and more youngsters getting interest in this science, taking an active interest from a very young age itself rather than just drifting into it in the future? What kind of a future do you see for that in our country? अभी आप देखेंगे ना, वेदर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है, इंटरफेस है शुरू से ही। जैसा कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, दूसरा जो है सेंसर टेक्नोलॉजी। आज की डेट में बहुत चीजें सेंस करके, टेम्परेचर हो, साइल की मॉइस्चर हो, जो लीफ एरिया इंडेक्स हो, जो भी इंफॉर्मेशन है सेंसर के थ्रू एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स आईटी इंटरफेस से इमीडिएटली क्लाउड सर्विसेज पे डाटा जा सकता है। वो जाके लोकल लेवल पे, जैसा अभी वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लार्ज स्केल फार्मिंग फॉर टी और कैश क्रॉप्स और रेगुलर फूड सीरियल क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज लाइक कॉटन है, अलग जो सबसे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, उसमें फोकस
देने के लिए, रबर है लाइक दिस। सो कैश क्रॉप्स पे फोकस करने के लिए काफी एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स है जो काम, so many IT professionals are joining this। तो जहां पर भी ये सर्विस करेंगे उनको एग्रीकल्चर इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट करना है, एक्सट्रीम वेदर से डैमेज नहीं होना है। सो लाइक दैट इवन द एग्रीकल्चर मंडी में जब पैदावार आ गया है उसको सुखाने के लिए किसान नॉर्मली उधर स्प्रेड करते हैं। अगर बारिश आ रहा है बोल के अगर मंडी में फोरकास्ट चला जाता है, वो स्प्रेड नहीं करेंगे, अपना कलेक्ट करके सेफली बारिश से बचाएंगे। सो लाइक दैट बहुत चीजें हैं आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेदर इंफॉर्मेशन से बहुत ज्यादा इकोनॉमी को, डैमेज को प्रोटेक्ट करने का, इकोनॉमी को प्रिजर्व करने का स्टेप्स ले सकते हैं। तीसरा जो है एयर क्वालिटी, वेदर एंड एयर क्वालिटी का लिंक है, बहुत ज्यादा क्लोज लिंक है। पब्लिक हेल्थ, वेक्टर बार्न, वाटर बार्न डिसीजेस का लिंक है। पर्टिकुलर टेम्परेचर में इतना नमी आ गया तो वो वेक्टर्स के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है। सो जो एक्सटेंडेड रेंज प्रेडिक्शन कह रहे हैं ना, हर वीक में अगले 2-3 हफ्ते के लिए जो टेम्परेचर अनोमली कैसा रहेगा, रेनफॉल अनोमली कैसा रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, वी कैन आइडेंटिफाई क्लस्टर्स वेयर ये वेक्टर बॉर्न डिसीजेस की ग्रोथ शुरू हो सकती है, जो क्लस्टर्स डेवलप हो सकते हैं। वहाँ क्लस्टर डेवलप होने का आपको पता चल जाता है 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। डेफिनेटली वहाँ जो है लोकल म्युनिसिपैलिटीज एक्शन लेके उसका स्प्रेड को रोक सकते हैं, ताकि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इसकी स्प्रेड को जो है, इंसिडेंस हो सकती है मगर स्प्रेड को रोक सकते हैं। सो ये सब चीज जो है हम एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, वाटर सेक्टर के साथ, जो कैश क्रॉप्स के लिए जो सर्विसेज एडिशनली बिल्ड होंगे, सिमिलरली जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए चाहिए, उनकी जहां क्लस्टर है, सोलर फार्म्स है, वहां पर सनशाइन आवर्स की प्रिडिक्शन चाहिए, कितना सनशाइन आवर्स रहेगा नेक्स्ट डे के लिए। सो उसके हिसाब से उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो मार्केट करेंगे। सिमिलरली विंड एनर्जी के लिए जितना 5 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर, 5 और 10 किलोमीटर की पर आवर विंड स्पीड कितना घंटे के लिए रहेगा, उससे क्या है उनकी जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन उससे निर्भर करता है। सो लाइक दैट ये सब के लिए एडिशनल सर्विसेज आ रहा है, वो सब फ्यूचर के लिए काफी है एंड बहुत स्टार्टअप्स आने वाले हैं। बिल्कुल, तो इसमें भी हम स्टार्टअप्स देख सकते हैं और युवाओं की ज्यादा भागीदारी हम इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। डॉक्टर महापात्रा, चलते चलते आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत जो मौसम विभाग है वो लगातार जो नए अनुप्रयोग हैं और सेवा के क्षेत्रों में कदम रख रहा है, और लगातार जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इसने निर्मित किया है और मौसम विज्ञान और वायुमंडलीय विज्ञान को एक साथ इसका विकास यहाँ पर करें। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक रोमांचक भविष्य की दहलीज पर हम देख रहे हैं इसे। आपने सही बताया कि आप पिछले 5-10 साल देखें तो एक बहुत परिवर्तन हुआ है भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी मंत्रालय का अप्रोच में। एक पैराडाइम शिफ्ट आए हैं हमारा फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सर्विसेज में, और इसका नतीजा भी देश के लिए अच्छा रहे हैं। मगर अभी भी ऐसे कुछ चैलेंजेस है जिसको भी हम मीट करना चाहते हैं, और हमारा जो सर्विस है उनको फिर और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग और प्रभावशाली करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू साइक्लोन्स बहुत सारे रिड्यूस्ड हो गया है। कोई एक साइक्लोन नहीं है पास्ट 10 ईयर्स में जिसमें डेथ, क्योंकि लैंडफॉल हुआ है जिसमें डेथ 100 से ज़्यादा हुआ है। और ये उपलब्धियां सिर्फ भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरा एरिया के लिए, यानी एंटायर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट के लिए हुआ है, और इसमें भारत का एक अहम भूमिका रहा है। मगर जब आप थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड लॉसेस या लॉस ऑफ लाइफ देखते हैं, जैसे लाइटनिंग का नंबर ऑफ डेथ्स फिर भी इंक्रीज हो रहा है। जी। इसका रीजन यही है कि लाइटनिंग एक स्मॉल स्केल फीचर है, ये सभी जगह में एक ही जगह टाइम पर नहीं होता है, और इसका लाइफ पीरियड भी बहुत कम होता है। थंडरस्टॉर्म जैसे 2 घंटे मैक्सिमम होता है, और इसका एक विलेज में कि 2 विलेज में कभी कभी साइमल्टेनियसली होता है। सो इसको अच्छे ढंग से निरीक्षण करना और इसका प्रबंधन करना एक चैलेंज है। और ये चैलेंज को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग और मिनिस्टर ऑफ साइंसेस रिसेंटली लाइटनिंग वार्निंग का शुरुआत किए हैं। लास्ट 2 years वी आर प्रोवाइडिंग लाइटनिंग वार्निंग और एक्रोस द कंट्री। मगर वो लाइटनिंग वार्निंग का सटीकता
और वो लाइटनिंग वार्निंग का हर विलेज लेवल पे उपलब्धि करना और लोगों के पास पहुंचना एक अभी चैलेंज है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि इन चुनौतियों से भी बहुत जल्द पार पाएगा मौसम विज्ञान विभाग, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हाल के समय में बहुत ही सटीक भविष्यवाणियों के साथ सामने आया है और जहां ना सिर्फ करोड़ों की संपत्ति का कम से कम नुकसान हुआ है बल्कि बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान को भी बचाने में बहुत सफल साबित हुआ है। और इस वक्त जिस तरह से हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे में आज की जो भविष्यवाणी सामने आई कि जो मानसून है वो सामान्य रहने वाला है, और उस लिहाज से कई मोर्चों पर हम एक अच्छी खबर देख सकते हैं, चाहे हम बात करें महंगाई की, चाहे बात करें खुदरास्फीति की, चाहे जीडीपी के हवाले से या फिर कृषि क्षेत्र के लिए। तो काफी एक अच्छी खबर लेकर आया है मौसम विभाग आज हम सामान्य देशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का हमारे इस विशेष अंक में जुड़ने में। Many thanks to all our guests for joining us here on our show, Dr. Mohapatra, Dr. Ramesh and Dr. Pai. And well, good news for all across the country as the IMD has predicted a normal monsoon in its first forecast. The next will be next month, and every month with new and more advanced technology, it has been predicting accurately its forecast, getting more and more accurate for every sector. बिल्कुल, तो सामान्य से रहने वाली है हमारी दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत के इस विशेष अंक में इतना ही। नमस्कार।